দেখা যাচ্ছে বিগত দিনে এই রেলগেট নিয়ে একটা বিশাল সমস্যায় পড়েছে। বহিরাগত থেকে এখানকার লোকাল অ্যাম্বুলেন্স মুমূর্ষু রোগী মৃত্যু ঘটেছে। এসব ঘটনা চোখের সামনে এসেছে, কি বলবেন আপনি এই বিষয়ে? দেখুন, আজকে আমরা এখানে 16 নম্বর মণ্ডল, বর্তমানে 1 নম্বর মণ্ডলের তরফ থেকে আমরা একটা অবস্থান বিক্ষোভ করেছি। এখানে আমাদের জেলা সভাপতি উপস্থিত আছেন মাননীয় ভূষণ মোদক মহাশয়, আমাদের 2 নম্বর মণ্ডল অর্থাৎ 17 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি কৈলাস ইয়াক্কাজি এবং আমাদের সমস্ত নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত আছেন। আজকে আমাদের যে এখানে রেলগেটের সামনে যে অবস্থান বিক্ষোভ, 3টি বিষয় নিয়ে আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ। প্রথমত এখান থেকে ডলোমাইট শিফটিং করতে হবে, এখান থেকে অন্যত্র, সেটা মুজনাই হতে পারে, যে কোনো জায়গাতে হতে পারে, এবং এখানে একটা ফ্লাইওভার আরবি ওভারব্রিজ তৈরি করতে হবে। এবং বীরপাড়া মানুষের বহুদিনের দাবি আছে যে জমির পাট্টা দিতে হবে, এইটা আমাদের দাবি আছে। সেই দাবির সাপেক্ষে আজকে আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করতেছি। যে সবসময় শাসক দল অভিযোগ করে থাকে যে সাংসদ বিধায়করা কিছু করেনি, এখানে রেল গেটের উপরে কোনো আরোপি হচ্ছে না, ডলোমাইট শিফটিং হচ্ছে না। তো আপনাদের মাধ্যমে শাসক দলকে আমি বলতে চাই যে ঠিক, রেল তো কেন্দ্র সরকারের, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কেন্দ্র সরকারের সম্পত্তি রাজ্যের মধ্যেই থাকবে, আকাশে বাতাসে বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানে থাকবে না। সেটা স্বাভাবিক কারণে অঙ্গ রাজ্যেই থাকবে, সেটা পশ্চিমবঙ্গ হতে পারে, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, যে কোনো রাজ্যে সরকার, কেন্দ্র সরকারের সম্পত্তি থাকতে পারে। এখানেও রেলের সম্পত্তি রয়েছে। তো এখানে আপনারা জানেন যে বহুদিন ধরে ডলোমাইটের লোডিং আনলোডিং হচ্ছে এবং ট্রেনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছে। তো এইখানে শিফটিং আমি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে থেকে না, 2006 থেকে আমরা আন্দোলনে আছি। এর আগে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, বামফ্রন্ট সরকারের কালেও আমরা অনেক জায়গায় ডেপুটেশন দিয়েছি। তারপরে 2011 সালে মানুষ অনেক আশা করে বর্তমান সরকার, দিদিমণির সরকারকে এনেছে এখানে, কিন্তু আমরাও এই সরকারকে অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছি। তো মূলত যেটা কারণ আছে যে এখানে শিফটিং না হওয়া, সেটা আপনার মাধ্যমে আমি সাধারণ মানুষকে বলতে চাই, বীরপাড়াবাসীর এবং যারা বিরোধী দলে আছে তাদেরকে বলতে চাই। দেখুন, এখানে যদি শিফটিং হয় নিয়ম অনুযায়ী, শিফটিং রেল যে কাজ করার, দেখবেন যে হিমালয় হোটেলের সামনে রেল মাটি পুঁতে রেল মানে লাইন পাতার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমার কাছে ডকুমেন্টস আছে, আমার কাছে সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস আছে, আমি আপনাদেরকে জেরক্স দিয়ে দেবো এখানে, ঠিক আছে? যে রেল অনেকবার ডিএম এর মাধ্যমে চিঠি দিয়েছে, ডিএম কে চিঠি দিয়েছে যে আমাদের এখান থেকে যদি শিফটিং করতে হয় তাহলে 7.16 একর জমি আমাদেরকে লাগবে। কেননা রেলের যত জমি আছে, জমির উপরে তো লাইন পাতা হয়ে গেছে, ওইখানে যেখানে ডলোমাইট লোডিং এবং আনলোডিং হবে তার জন্য তো জমি দরকার না। এখানে যেরকম লোডিং আনলোডিং এর কাজ হচ্ছে, তো সেখানে তো রেলের জমি নেই। এবার রাজ্য সরকারের দায়িত্ব আছে যে সেখান থেকে ওই যে জমি আছে সেখান থেকে 7.16 একর জমি অধিগ্রহণ করে দিয়ে যাদের দায়িত্বে মানে যাদের আছে জমিটা, ওদের কাছ থেকে নিয়ে রেলকে দিয়ে দেওয়া। 7.16 একর জমি আমাদেরকে দিতে হবে বলে এখানে রেল চিঠি করেছে, আমার কাছে চিঠি আছে, আপনারা আমি দিয়ে দেবো, কপি দিয়ে দিব। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার 7.16 একর জমির অধিগ্রহণ করে দিতে পারেনি। এখানে ক্লিয়ার ভাবে লেখা আছে যে, আমি এই যে লাল দাগি করে দিয়েছি, এখানে রেলকে উত্তর দিয়েছে, এখানে লেখা আছে যে ইনকামব্রেন্সেস এর অর্থ হচ্ছে যে যারা মালিক রয়েছে জমি, তাদের সাথে বোঝাপড়ার অভাবে আর তাদেরকে আমরা বোঝাতে পারিনি, সেই অভাবে আমরা রেলকে জমি দিতে পারছি না। সেই জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আমরা জমি দিতে পারতেছি না। পুরো কপিটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। তো রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ার ফলে কিন্তু এখানে শিফটিং এর কাজ আটকে আছে। এটা বর্তমান যারা শাসক দল আছে, নেতা নেত্রী আছে, তাদেরকে বুঝতে হবে। তারা তো শুধু ওই যে সবুজ নোট আর ওই যে গোলাপি নোট আছে ওটাকে চিনে, কিন্তু এখানে যে সমস্যা আছে, সমস্যাকে যারা গভীরে যেতে হবে ওই সমস্যার গভীরে যেতে চায় না, উপরে উপরে এরা নাচতে চায়। তো জমির অধিকার যে আছে এটা রাজ্য সরকারের অধীনে থাকে, এটা কেন্দ্র সরকারের অধীনে থাকে না। এবার রাজ্য সরকারের দায়িত্ব আছে যে 7.16 একর যদি জমি আজকে যদি রাজ্য সরকার দেয় তাহলে আমরা কালকে শিফট করে দেবো। এটা আপনাদের মাধ্যমে বীরপাড়াবাসীকে আমরা আশ্বাস দিতে চাই। দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে আরবি যেটা রোড ওভারব্রিজ আছে, এইখানে সেম ব্যাপার আছে। আমাদের কি ফেডারেল স্ট্রাকচার আছে, যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামো আছে, আমাদের কনকারেন্ট লিস্ট আছে। কনকারেন্ট লিস্ট মানে কি হয়,
কোনো কাজ যে থাকে কনক্রিট লিস্ট মানে কোনো কাজ থাকে সেই কাজগুলো রাজ্য একা করবে এবং কিছু কাজের একটা লিস্ট থাকে যেটাকে রাজ্য এবং কেন্দ্র যুক্তভাবে করতে হয়। তো এটা ফেডারেল স্ট্রাকচার এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোতে এইখানে যে আরবি হবে এইখানে কেন্দ্র এবং রাজ্যকে সংযুক্তভাবে করতে হবে। তাই এইখানে 63 কোটি টাকা লাগবে। তো যদি 63 কোটি টাকা খরচ হয় তাহলে 31.5 অর্থাৎ 31 কোটি 50 লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে, তাহলে এই কাজটা সম্পন্ন হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার বারবার ওই খেলা মেলা অমুক তমুক করে টাকা খরচ করে যাচ্ছে, কিন্তু বীরপাড়া মানুষের যে অসুবিধা রয়েছে, যে এখানে সমস্যা রয়েছে, অনেক মায়েরা এখানে বাচ্চাকে জন্ম দিয়েছে, অনেক পেশেন্ট মারা গেছে, কিছুদিন আগে ভেটারান ফুটবলার বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড় মারা গেছে। তো রাজ্য সরকার ওইদিকে নজর দিচ্ছে না। রাজ্য সরকার খেলা মেলা অমুক তমুক মাটি উৎসব অমুক উৎসব করে তাতে ব্যস্ত আছে এবং হাজার কোটি টাকা তার মাধ্যমে খরচ করে দিচ্ছে, কিন্তু এখানে 31.5 কোটি টাকা দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমান রাজ্য সরকার নেই। রাজ্য সরকার যদি 31.5 কোটি টাকা দিয়ে দেয় তাহলে এই দ্রুত এই কাজও শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। বারবার রাজ্যে আর্থিক অনটন, আমরা আর্থিক অবস্থায় ভালো না, আমরা দিতে পারবো না। আমি নিজে যিনি রয়েছেন, আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি আলিপুরদুয়ার কথা বলেছি, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার শিলিগুড়ি ডিকে সিং সাথে কথা বলেছি, সব ফাইল কলকাতা নবান্নতে পাঠানো আছে। আমি বর্তমানে এর আগেও যিনি পিডব্লিউডি মিনিস্টার ছিলেন তার সাথে আমি কথা বলেছিলাম, বর্তমান যিনি পিডব্লিউডি মিনিস্টার আছেন ওনার সাথে কথা বলেছি। উনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে না, আমাদের যে এখন আর্থিক অবস্থা আছে তাতে আমরা 31.5 অর্থাৎ 31 কোটি 50 লাখ টাকা দেওয়ার মতন অবস্থা নেই, সেই জন্য আমরা এই কাজটা করতে পারবো না। কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে বলতে পারি যে আমরা কিছুদিন আগে ডিআরএম স্যার সাথে কথা বলেছিলাম, এইবার রেল পুরো টাকা দিয়ে এই কাজটা করবে, কিন্তু জমি আবার জমির জোট আসবে। কেন এই যে আশেপাশে যে বাড়িগুলো আছে এটা পরিষ্কার করে দেওয়ার, রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রেল আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে, ডিআরএম সাহেব আশ্বাস দিয়েছে এবং লিখিতভাবে রেল মন্ত্রককে পাঠিয়েছে যে যত টাকা লাগবে সম্পূর্ণ টাকা রেল দেবে, কিন্তু জমি রাজ্য সরকারকে খালি করে দিতে হবে। আমাদের রাজ্য সরকারের এবার টাকার দরকার নেই, কেন্দ্র দিয়ে আমরা টাকা নিয়ে আসবো, কিন্তু রাজ্য সরকারকে জমি দিতে হবে। রাজ্য সরকার যদি জমি দিয়ে টাকা স্যাংশন হয়ে যাবে তাহলে ইমিডিয়েট যেটা বহু আকাঙ্ক্ষিত বীরপাড়া মানুষের দাবি, এই দাবি পূরণ হবে। तो उनका देहांत हो गया सर। इस बीच में लोकल कई सारे लोगों का देहांत हुआ जिसके बारे में कोई बात नहीं करते। कल ही का घटना है, कल शाम का एथलबाड़ी का एक बच्चा है साकेत अग्रवाल, 16 साल का बच्चा है, जो कल खेलते वक्त गिर गया था। उसका सांसें चल रही थी, बीरपाड़ा रेल गेट में वो आधा घंटा फंस गया, जिसके कारण जब हॉस्पिटल गया तो उसकी मौत हो गई सर। और कितनी मौत है बीरपाड़ा में? देखिए, इसके लिए तो पूरी सरकार से राज्य सरकार जिम्मेवार है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये आज से नहीं, हम लोग 2006 से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर आरओबी का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर केंद्र का, आप देखिए उदलाबाड़ी में जहाँ पर केंद्र का फ्लाईओवर है, जहाँ हाई रोड है, वहाँ उदलाबाड़ी कितना सुंदर फ्लाईओवर हुआ है। आज का सामने देखिए सार्क रोड में आपका हासीमारा में कितना सुंदर फ्लाईओवर हुआ है। लेकिन जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों को मिल करके काम करने का बात आता है तो राज्य सरकार पीछे हटने के कारण ही आज ये कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ डोलोमाइट शिफ्टिंग के लिए 7 रेल ने अपना काम शुरू कर दिया हिमालय होटल के सामने, लेकिन जहां पर डोलोमाइट लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा उसके लिए तो जमीन चाहिए ना। लोडिंग अनलोडिंग का काम आसमान और आकाश और इसमें तो पाताल के नीचे तो नहीं हो सकता, वो जमीन में होगा। तो जमीन का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है और राज्य सरकार को जो एनएफ रेलवे ने कई बार चिट्ठी लिखा है डीएम साहब को कि हमें 7.16 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन केंद्र राज्य ने यह कहकर के इसको टाल दिया कि जो जमीन के मालिक है उनको हम लोग समझाने के लिए असमर्थ है, इसलिए आपने जो 7.16 एकड़ का जमीन का डिमांड किया है, दाबी किया, वो जमीन हम आपको नहीं दे सकते हैं। यदि राज्य सरकार जमीन नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये बार राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह 7.16 एकड़ जमीन रेल को दे। यदि शिफ्ट नहीं होता है तो उसका जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी लेगी और विधायक के हिसाब से उसका जिम्मेवारी मैं लूंगा। पहले राज्य सरकार जमीन दे, शिफ्ट नहीं होता है तो उसका जिम्मेवारी हम लोग। लेकिन राज्य सरकार के जमीन नहीं देने के कारण ही आज यहाँ से डोलोमाइट शिफ्टिंग का काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, ये सही बात है कि यहाँ पर बांग्लादेश फुटबॉलर का देहांत हुआ है, यहाँ पर एक न्यूजीलैंड के जो बाइकर है उसका देहांत हुआ है। इससे पहले भी हमने लोकल कितने पेशेंट, कितने मरीज यहाँ पर मारे जा चुके हैं, कितने गर्भवती महिलाएं, माएं अपने बच्चों को रेल गेट के सामने जन्म दे चुकी है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। लेकिन जो निष्ठुर सरकार है, जो सरकार बोलती है कि ये जो है माँ माटी मानुष की सरकार है, जिसका मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वही आज यहाँ पर
माने महिला के ऊपर में दया दिखाने में असमर्थ है, जिसके कारण आज महिलाओं को यहाँ पर अपना प्राण देना पड़ रहा है। तो राज्य, हम लोग जानते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिल करके काम करना पड़ता है। संविधान के अनुसार एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है, उस लिस्ट के अनुसार में कोई काम ऐसा होता है जिसको राज्य सरकार अकेली करती है या केंद्र सरकार अकेली करती है, और कोई लिस्ट में ऐसा काम है जिसको राज्य और केंद्र दोनों को मिल करके करना पड़ता है। यहाँ पर जो शिफ्टिंग और ओवरब्रिज का जो काम है, ये केंद्र एवं राज्य दोनों को मिल करके करना चाहिए। और यहाँ आरओबी के लिए 63 करोड़ का एक जो प्रपोजल है, या सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर शक्तिगढ़ सिलीगुड़ी के माध्यम से नबार्ड में गया हुआ है, लेकिन मैंने इससे पहले के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी अप्रोच किया था, उनसे बातें की थी, वो भी पैसा का हवाला दे करके नहीं बनाया। अभी जो वर्तमान पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनसे भी मैं बात किया, वो भी कहते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार का जो खस्ता हाल है, जो आर्थिक अवस्था है, उसमें हम 31.5 करोड़ रुपया देने में, क्योंकि 63 करोड़ रुपया खर्च होता है तो आधा पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार 31 करोड़ 50 लाख रुपया देने में भी असमर्थ है। लेकिन उनके पास खेला मेला अमुक उत्सव करने के लिए पैसा है, जहां पर हजारों करोड़ रुपया लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन जहां पर एक मूल समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए आरओबी करना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। यदि राज्य सरकार अभी पैसा देती है तो कल यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। हमने रेलवे को रिक्वेस्ट किया है और हमारा रिक्वेस्ट माना है कि इस बार हमने डीआरएम साहब के माध्यम से पूरा पैसा रेल मंत्रक रेल दफ्तर देने का बात है। यदि पूरा रुपया रेल मंत्रालय दे भी देता है, फिर भी यहाँ पर जमीन खाली करने का जिम्मेवारी तो राज्य सरकार के पास ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जब आरओबी बनेगा तो कुछ दूरी तक जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक जाएगा, 2 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। तो ये जो दोनों तरफ जो इंक्रोचमेंट है, इसको खाली करने का जिम्मेवारी लेकिन राज्य सरकार का है। हम पूरा पैसा डालेंगे, लेकिन राज्य सरकार का जिम्मेवारी है कि वो जमीन खाली करके हमको दे। ये काम भी हम लोग इस बार शुरू करके आप बीरपरावासी को उपहार के रूप में देना चाहेंगे। तो जब तक फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, क्यों ना रेलवे द्वारा एक अंडरपास बनाया जाए, जिसका मांग भी काफी समय से हो रहा है। लेकिन अंडरपास बनाने के लिए जाएंगे, फिर भी वहाँ पर आपका जमीन का दरकार है। जमीन तो राज्य सरकार के पास है ना, ये आसपास में तो अंडरपास बनाने का जगह नहीं है। लेकिन एक जो आपका खुदिराम पल्ली है, खुदिराम पल्ली के बगल से यदि आप यूरोपियन क्लब के बगल से यदि रास्ता निकाल देते हैं तो क्योंकि यदि आप शांति नगर से रास्ता निकालेंगे तो पटरी का नीचे से आकर के फिर उसको रेल गेट में जाम में ही फंसना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जो खुदिराम पल्ली में जो अंडरपास है, उसको यदि आप वो गेट जो बंद है, उस गेट को खोल करके यदि यूरोपियन क्लब और जो हॉस्पिटल का जो वाल है, वाल के बगल से लेकर के यदि उस गेट से आप निकालेंगे तो उसका सुफल होगा। हमने डीआरएम साहब को प्रपोजल दिया, इस बीच में वो विजिट में आएंगे, हम लोग संयुक्त रूप से विजिट करेंगे और जो यूरोपियन क्लब का जो मार्ट है, जो मालिक है बीरपड़ा बागान का, उससे बात करके हम लोग रास्ता के लिए जगह मांगेंगे और मांगने के बाद में वहाँ से कम एम्बुलेंस के रास्ता का निर्माण हम लोग उस ओर से करने का प्रयास करेंगे। तो जनता के प्रतिनिधि आगे नगरिया ब्लॉक के आम जनता की आवाज कोई भी सरकारों तक नहीं पहुंच रहा है। जनता से जब हमारा बात होता है तो वो यही कहते हैं कि वो अपने एमएलए की तरफ देखते हैं कि वो कुछ हमारी बात उठाएंगे। जब यहाँ पे रेलवे के जीएम सर आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग कैंप बैठाएंगे, जब भी लोडिंग होगा वहाँ पे पानी का छिड़काव होगा, डोलोमाइट शिफ्टिंग के लिए बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। इस तरह का बहुत सारा वादा किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होता दिख रहा है। तो लोग के अंदर ये है कि हम लोग का तो आवाज पहुंच नहीं रहा है। हमारे जो प्रतिनिधि है उन्हीं से उम्मीद है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पर कई बार, कितना बार मैंने चिट्ठी लिखा है, आपके सामने यहाँ पर है रेलवे का मैंने सारा चिट्ठी आज लाया हूँ। यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर मैंने जीएम को भी चिट्ठी लिखा हूँ विधायक के रूप में। इसी के अंदर में मेरा स्टेट सरकार, राज्य सरकार के पास भी है, समस्त चिट्ठी मैंने लिखा हूँ। ये बात सही है कि जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंडर में है? राज्य सरकार के अधीन है। अब यदि राज्य सरकार का पोल्यूशन डिपार्टमेंट, प्रदूषण विभाग यदि यहाँ पर सर्टिफिकेट दे दे कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो जो बात जीएम साहब बोले, बिल्कुल जब लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा तो प्रदूषण को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए। हमने भी जीएम साहब को बोला है, और ताकि यहाँ पर धूला नहीं उड़े। लेकिन राज्य सरकार का प्रदूषण विभाग ये लिख करके दे दे
कि डोलोमाइट का से यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो डीआरएम और जीएम साहब क्या कर सकते हैं? तो प्रदूषण विभाग, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, प्रदूषण विभाग किसका है? राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार का पोल्यूशन डिपार्टमेंट यहाँ पर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे कि बीरपड़ा बागान में किसी प्रकार का डोलोमाइट लोडिंग अनलोडिंग के कारण प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो जीएम और हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट तो राज्य सरकार का है। पर सर ये पानी का छिड़काव, हेल्थ चेकअप, ये सब तो वादा किया गया था जीएम सर के द्वारा, रेलवे के द्वारा, वो तो नहीं हो रहा है। निश्चय ही जब जीएम साहब और डीआरएम साहब इसका वादा किए हैं, तो इस विषय पर हम लोग जरूर उनसे डीआरएम साहब और जीएम साहब से बात करेंगे हेल्थ चेकअप के लिए। फिर मैं एक बार बोलना चाहूंगा, जहाँ पर पोल्यूशन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर जब पानी का छिड़काव और चेकअप का तो मैंने बात ही नहीं उठता है। तो राज्य सरकार यदि यहाँ कह दे कि इसके माध्यम से डोलोमाइट लोडिंग अनलोडिंग के माध्यम से यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, तो वो युक्ति वहाँ पर जाकर ठहरता है कि यहाँ पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, यहाँ पर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। लेकिन फिर भी राज्य सरकार यदि जनता पर ध्यान नहीं देती, तो हम लोग अवश्य ही राज्य डीआरएम और जीएम साहब से बात करके यहाँ पर पानी का छिड़काव हो और यहाँ पर चेकअप हो, ताकि हम लोग जो अपना जनता को देखने का जिम्मेवारी हम लोगों का है, ताकि यहाँ जो बीमार हो रहे हैं और जो धूला उड़ रहा है, उससे यहाँ के लोगों को छुटकारा मिले। सर ये पहले वाला जमाना तो रहा नहीं कि लोगों के पास जानकारी नहीं है। अभी अगर हम लोग गूगल करते तो बीरपाड़ा का एयर क्वालिटी इंडेक्स में 300 के ऊपर रहता है, हर समय 300 के ऊपर रहता है, जबकि एक स्वस्थ सांस लेने के लिए एयर 50 से 100 के बीच में सही रहता है। ये हम लोग के बीरपाड़ा में सर अभी गूगल करके देखने से 300 के ऊपर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही घटिया है सांस लेने के लिए। तो ये सब कुछ देख रहे हैं सर, जब लोडिंग होता है तो कोई छिड़काव नहीं होता है, जब कोई आते हैं रेलवे के डिपार्टमेंट से उस समय छिड़काव होता है। धूल सर देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज सभी कुछ यहीं पे मेन रोड सिटी के बीच में है ये। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी को पता है कि सर बीरपाड़ा का हद से ज्यादा खराब है। इसके लिए सर सभी को आपके ऊपर देखते हैं कि आप कुछ करेंगे इसके ऊपर। देखिए, यहाँ पर आपने ठीक ही कहा कि एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये तो दुर्नीतिग्रस्त सरकार है ना। यहाँ पर हमारे अलीपुरद्वार जिला में एक इथेनॉल का फैक्ट्री होने वाला है यहाँ पर, होगा आने वाला दिन में, जो कि पेट्रोल और डीजल का विकल्प होगा। ठीक है, उसका और स्टेट में पोल्यूशन का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है। ये वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार में पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए 15 लाख रुपया देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये राज्य सरकार कितना दुर्नीतिग्रस्त है और उनका डिपार्टमेंट भी कितना दुर्नीतिग्रस्त है। यदि कोई पैसा खा करके यहाँ का एयर कंडीशन ठीक है, यहाँ का जो एयर का जो कंटेंट है वो सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल में तो जनता का कोई मूल्य नहीं, यहाँ पर मूल्य है पैसा का, यहाँ पर मूल्य है जो हरा नोट है, गुलाबी नोट है, उसका मूल्य है, जनता का कोई मूल्य नहीं। यदि पोल्यूशन विभाग यहाँ पर लिख दे कि यहाँ पर ये लोडिंग अनलोडिंग के लिए माने सुटेबल जगह नहीं है, यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो कल यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। लेकिन पैसा के विनिमय से यहाँ पर प्रदूषण विभाग जो पश्चिम बंगाल सरकार का बिकी हुई है, और जिसके कारण ये काम हो रहा है। इस बात को भी हम लोग आने वाला समय में विधानसभा में उठाएंगे, एक बार फिर से यहाँ पर एयर पोल्यूशन को मापने की बात हम लोग रखेंगे। सर तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस झमेले में फंस गई है बीरपाड़ा की जनता, तो आप बीरपाड़ा डुवर्स की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बीरपाड़ा के जनता को ये जो नरक है डोलोमाइट साइडिंग और ये ओवरब्रिज का, इससे हम लोग मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, ये लड़ाई आप चरम पर पहुंच चुकी है और एक समाधान के रास्ते पर भी जा रही है, क्योंकि यदि राज्य सरकार जमीन शिफ्टिंग के लिए जमीन नहीं देती है, तो हम लोगों ने रेल से बात किया है कि रेल का जमीन जो यहाँ पर सिसोबाड़ी में जो यहाँ पर ये करके रखे हुए हैं, दखल करके रखे हुए हैं, ठीक है, यदि आप जमीन देना नहीं सकते हैं, तो रेल का जो जमीन है वो खाली करके आप हमें दे दीजिए, हम वहाँ शिफ्टिंग का काम कराएंगे। फिर घूम फिर करके बात यहाँ पर आता है, यदि नहीं देता है तो उसका व्यवस्था रेल करेगी। रेल विकल्प व्यवस्था जो मुजना स्टेशन है, वहाँ पर स्टेशन को शिफ्ट करके रेल का जितना जमीन है वहाँ शिफ्टिंग करने का प्लान चल रहा है और रेल लाइन का काम भी हो रहा है। और मैंने कहा ना, आरओबी से भी हम लोग मुक्ति दिलाएंगे। राज्य सरकार पैसा नहीं देगी, हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग रेल से बात किए हैं, पूरा पैसा रेल मंत्रालय देगी और ये आरओबी को उपहार हम लोग इसी बीच में जरूर बीरपाड़ा वासी को देंगे। अब जरूर कि यदि राज्य और केंद्र का लड़ाई में ये सही बात है कि हम लोग यहाँ पर पिस रहे हैं, उस पिसने वालों में से मैं भी बाहर नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर धूला खाता हूँ, मैं भी आकर के रेल गेट में जाम में पड़ता हूँ और कभी कभी हम लोग मीटिंग में डिले पहुँचते, 1 घंटा 1.5 घंटा हमें भी फंसना पड़ता है। मेरा भी यही रास्ता है। इसलिए हम लोग इस दोनों जो नरक है शिफ्टिंग और ये जो आरओबी का, इससे हम राज्य सरकार को मदद नहीं करेंगे, लेकिन विकल्प व्यवस्था निकाल करके जनता को हम लोग जरूर रिहाई देंगे। ये आश्वासन आपके माध्यम से बीरपाड़ा वासी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, हम लोग से बात। আর এমএলএর বাড়ি ঘেরাও হচ্ছে, এই বিষয়ে কি বলবেন আপনি?
কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তারা করছেন। এই ঘেরাওয়ের পিছনে কোনো সারবত্তা নেই, কারণ যে সকল অভিযোগ তারা সামনে এনেছেন যে পিএফের টাকা জমা হচ্ছে না, তাদের যদি সত্যি সেই ইচ্ছা থাকতো এই রাজ্য সরকারের যে পিএফের টাকা জমা করাতে হবে, ইতিমধ্যেই ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের এমপির তরফ থেকে, বিধায়কের তরফ থেকে একাধিক অভিযোগ এফআইআর বিভিন্ন থানায়, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার জেলার আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জেলায় বিভিন্ন থানায় যেসব চা বাগানের পিএফের টাকা জমা হয়নি তার ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বা কেস এফআইআর হয়েছে। কিন্তু এখন এবং নর্মাল সেকশনেও এফআইআর হয়েছে। কোনো বাগান মালিকের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের অধীনে পুলিশ রয়েছে, রাজ্য সরকারের পুলিশ কোনো তদন্ত করেনি, কোনো গ্রেপ্তার কোনো চাপ অভিচার মালিককে করেনি। অর্থাৎ এটা একটা তাদের প্রচ্ছন্ন মদতেই, অর্থাৎ চা বাগান যারা যেসব মালিকরা পিএফের টাকা জমা করছেন না তাদেরকে রাজ্য সরকার সরাসরি মদত দিচ্ছেন যাতে টাকা জমা না হয়। তো এইখানে অভিযোগ, অর্থাৎ তাদের এই বিক্ষোভ বা অবস্থান যদি করতে হয় থানার এগেনস্টে হওয়া উচিত, থানা চত্বরে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো ইস্যু নেই। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একদিকে 100 দিনের টাকা চুরি থেকে শুরু করে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর চুরি থেকে শুরু করে, চাকরি চুরি থেকে শুরু করে নেতা মন্ত্রী একের পর এক তদন্তের সম্মুখীন হচ্ছেন, সিবিআই ইডির হাতে ধরা পড়ছেন, জেলে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই জন্য একটু হাওয়া পাওয়ার জন্য আপনারা দলীয়ভাবে কোনো রকম কর্মসূচি করবেন কি এ বিষয়ে? আমরা এ বিষয়ে দলীয় কর্মসূচি গতকাল জেলাতে আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আগামী পরশু মানবিচায় আলিপুরদুয়ার জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রধান যিনি রয়েছেন সভাধিপতি শ্রীরা দাস, তার বাড়ির সামনে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন অবস্থান বিক্ষোভ করব এবং সেটা 3 বা 4 তারিখ, এখনও নির্দিষ্ট দিনটি হয়নি, তো অতদিন 3 বা 4 তারিখেই হবে। আর আগামী 1 তারিখে আমরা বারোবিশার মুখে বারোবিশার টাউনে আমরা এই বিষয়ে একটা বড় রেলি করব এবং পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে সভাধিপতি বাড়ি ঘেরাওর পর সভাপতিদের বাড়ি, অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতিদের সভাপতিদের বাড়ি, প্রধানদের বাড়িতেও আমরা ঘেরাও বা অবস্থান বিক্ষোভের পথে এগোচ্ছি। তার পেছনে কারণ হচ্ছে এই প্রধান বা পঞ্চায়েত স্তর পঞ্চায়েতের যারা প্রধান রয়েছেন, সর্বোচ্চ জায়গায় যারা রয়েছেন, তারা বিগত দিনে এনআরজিএসের কাজ দেবে বলে মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছে, কিন্তু কাজ দিতে পারেনি। বর্তমানে তো কাজ বন্ধ আছে, তো তার আগে টাকা তুলেছে কিন্তু কাজ দিতে পারেনি। তারপর বিভিন্নভাবে এখন আমরা যেটা জানছি যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের টাকা তারা ঘর চুরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে পাকা ঘর, 2তলা 3তলা বিল্ডিং, লাইট, 4 হুইলার, রেফ্রিজারেটর এইসব কিছু থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের নামে ঘর করিয়ে নিয়েছে। এই সকল বিভিন্ন দুর্নীতি অনিয়মের 100 দিনের টাকা চুরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির প্রতিবাদে আমরা ঘেরাও অবস্থান প্রোগ্রামে আমরা আগামী দিনে এগোচ্ছি এবং অনতিবিলম্বে সেটা হচ্ছে সারা জেলা জুড়েই হবে। শুরুটা হচ্ছে সভাধিপতির বাড়িতে। আচ্ছা, বলছিলাম